السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ سدوزئی۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کی بحالی سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت کی ہے۔ عالمی منڈیوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ثمر۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت 10 روپے فی لیٹر کم کر دی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا، ڈیزل 7.5 روپے سستا کر دیا گیا، قیمتوں میں کمی کا اطلاق ہو گیا ہے۔ مہنگائی کی تکلیف میں ریلیف کا جھونکا، حکومت نے بالآخر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول اب 214 روپے 80 پیسے میں ملے گا۔ ڈیزل کے دام 7.5 روپے کم کر دیے ہیں۔ لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں 10 روپے کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت 10 روپے کی کمی کے ساتھ آج رات 12 بجے کے بعد 214 روپے 80 پیسے مقرر کی جا رہی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 7.5 روپے کی کمی کے ساتھ 227 روپے 80 پیسے نئی قیمت مقرر ہوئی ہے۔ کیروسین آئل یا مٹی کا تیل اس میں 10 روپے کی کمی کر کے 171 روپے 83 پیسے کی جا رہی ہے، اور لائٹ ڈیزل آئل اس کو 10 روپے کی کمی کر کے فی لیٹر 169 روپے کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی حکومت کی کوشش ہے کہ عوام کو ہر ممکن ریلیف دیا جائے۔ اتحادی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی۔ لاہور کے شہری بھی ریلیف ملنے کے بعد پر امید ہیں کہ اب مہنگائی بھی کم ہوگی۔ مزید جانتے ہیں نبیل نقوی سے۔ نبیل، آگاہ کیجیے۔ ہاں جی، بالکل مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے حکومت وقت کی جانب سے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شہریوں کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا نصیب ہوا ہے، اور لاہور کے شہری جو ہیں اب پر امید ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد مہنگائی بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا تھا جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھیں تو خاص طور پر ٹرانسپورٹرز حضرات جو ہے اپنے کرائے بڑھا دیا کرتے تھے۔ لاہور میں چلنے والی انٹر سٹی اور انٹر سٹی ٹریفک جو ہے وہ اپنے من مانے کرائے ایک دم جو لینا شروع کر دیتے تھے۔ خاص طور پہ چنچی رکشوں کی بات کریں تو وہ بھی اپنے کرائے میں 10 سے 15 روپے فی الفور اضافہ کر دیا جاتا تھا ان کی جانب سے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو اب جو شہری ہیں وہ کافی پر امید نظر آ رہے ہیں کہ مہنگائی بھی اب جو مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، خاص طور پر روزمرہ اشیاء میں جو مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جا رہا تھا، اب اس کو جو ہے بریک لگے گی۔ خاص طور پہ جو سبزیاں، دالیں جو روزانہ کی بنیاد پر جو بڑھ رہی تھیں، اب جو کیونکہ پیٹرول اب 10 روپے کم ہوا ہے، ڈیزل جو ہے اس کے قیمتوں میں 7 روپے کمی ہوئی ہے، تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہری بھی کافی پر امید ہے۔ اور ویسے بھی گزشتہ روز وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو قیمتیں وہ 16 دسمبر سے 31 دسمبر تک ہیں، تو شہری دوبارہ ایک دفعہ پھر امید لگا کے بیٹھ گئے کہ حکومت جو ہے وہ نئے سال کا نبیل نقوی، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صورتحال پر آج اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں ISI حکام بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں وزیر داخلہ، وزیر قانون، معاون خصوصی، سیکریٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک شرکت کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق اجلاس میں چیئرمین FBI، DG FIA اور کسٹمز حکام بھی شریک ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں زر مبادلہ کے ذخائر 1 ارب 49 کروڑ ڈالر مزید کم ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، توانائی کی بچت پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ غیر معمولی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر معمولی اقدامات ناگزیر ہیں، جس میں ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی بحالی، توانائی کی قلت کے خاتمے کے لیے اجلاس ہوا، جس میں توانائی کی بچت کا قومی ہنگامی پلان تیار کر لیا گیا۔ پلان سے امپورٹ بل میں نمایاں اور واضح کمی ہوگی۔ بیٹھک میں غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ ایمرجنسی بچت پلان حتمی منظوری کے لیے کابینہ کے لیے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ انرجی بچت پلان پر صوبوں کے ساتھ مل کر عمل درآمد ہوگا۔ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔
वफाकी वजीर अयाज सादिक ने डिफॉल्ट की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं जा रहा। पाकिस्तान ने एशियाई तरक्याती बैंक के साथ $2 अरब से जायद कर्ज का मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के साथ ये मुआहदे अप्रैल से अब तक के हैं। इस कैलेंडर ईयर में तकरीबन 9 महीने में 2.7 बिलियन डॉलर समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने साइन किए हैं और अच्छी टर्म्स पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ लोन साइन किए, और अप्रैल से लेके अब तक 2.3 बिलियन डॉलर के ये लोन साइन किए। ये जो तासुर फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, खुदा न खास्ता, या फाइनेंशियल क्रंच में है, डिफ़ॉल्ट में जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये सिचुएशन होती तो ये आज हमसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एग्रीमेंट साइन कर रहे होते। उनको कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, तो तब ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मुल्की ज़र-ए-मुबादला ज़खायर में इस्तेहकाम। स्टेट बैंक के ज़खायर 6.70 अरब डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5.87 अरब डॉलर की सतह पर आ गए। मुल्क के मजमूई ज़खायर 12.57 अरब डॉलर की सतह पर मौजूद हैं। 9 दिसंबर के अख्ताम तक ज़र-ए-मुबादला ज़खायर में कोई खास तब्दीली रिकॉर्ड नहीं की गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की ज़ेर सदारत ECC इजलास के अलामिया के मुताबिक ECC स्टॉक का जायजा लेने के बाद चीनी की मजीद एक्सपोर्ट की मंजूरी भी दे सकती है। इजलास में वजारत हाउसिंग और मौसमी तब्दीली के महकमे को तकनीकी ग्रांट जारी करने की भी मंजूरी दे दी गई है। हर साल 16 दिसंबर का दिन कौम को कुर्ब और दुख की याद दिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशतगर्दों ने APS पेशावर में जुल्म की दास्तान रकम की है। APS सानेहा का बरसों बाद भी गम बुलाया नहीं जाता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज सानेहा APS के शोहदा से अकीदतुल वाहिकीन का गम बांटने का दिन है। कौम अपने शहीदों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। 16 दिसंबर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की एक आवाज़ होने का दिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक साबित कदमी जारी रहेगी। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर मुल्क की तारीख का एक गमनाक तरीन वाक़या है। राना सनाउल्लाह ने कहा, 16 दिसंबर को दहशतगर्दों ने बच्चों को हमला करके शहीद कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सानेहा APS का ये जख्म आज भी ताज़ा है, ये गम नाकाबिले फरामोश है। APS शोहदा ने कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होने की राह दिखाई है। राना सनाउल्लाह ने कहा, कौम ने मिलकर मुल्क से दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 8 बरस गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद हम आज भी सानेहा APS को नहीं भूल सके। बुज़दिल शरपसंद अनासिर ने कौम के मुस्तकबिल निहत्ते कमसिन बच्चों पर हमला करके इन्हें शहीद किया। इस दिन को याद करके कोई अपने आंसू नहीं रोक सकता। सानेहा APS के शोहदा ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। 16 दिसंबर का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की अजीम कुर्बानियों की हमेशा याद दिलाता रहेगा। बहैसियत कौम हमने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए तवील सफर तय किया। हम पाकिस्तान में देरपा अमन और तरक्की की जानिब गामजन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगानिस्तान के पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों को यकसां सिक्योरिटी चैलेंजेस और खतरात का सामना है। पाकिस्तान तमाम मसाइल के पुरअमन हल पर यकीन रखता है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में ताजिकिस्तान की कोशिशों को सराहता है। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के दरमियान मुलाकात हुई है। वज़ीर दिफा ने ताजिकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत और इसके अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस सलाहियतों में इजाफे और ताजिकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ तकनीकी महारत के तबादले में मदद फराहम करता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ने मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। सेंटकॉम कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा।
पाक फौज के शुबाई ताल्लुकात आमा एसपीआर के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक ने GHQ का दौरा किया। अमरीकी कमांडर ने GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी है और फूल चढ़ाए हैं। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक सेंटकॉम कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन के लिए ताउन का एतराफ़ भी किया। अमरीकी वफ्द आज तुर्खम का दौरा भी करेगा। ISPR के मुताबिक वफ्द को इंसदाद दहशतगर्दी, पाक अफगान सरहद पर बॉर्डर मैनेजमेंट के तरीक़ाकार से आगाह किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हमला केस JIT ने राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को कल तलब कर लिया है। विफाकी वज़ीर दाखिला, विफाकी वज़ीर इत्तलात और जावेद लतीफ कल JIT में पेश होंगे। रावलपिंडी में मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का रावलपिंडी में ऑपरेशन किया गया। 1,04,558 लीटर दूध की चेकिंग हुई। 2200 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया है। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर नाके लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई है। जदीद लैक्टो मशीनों की मदद से मौका पर दूध के टेस्ट किए गए हैं। दूध के नूनों में पानी और मुज़े सहित अज्जा की मिलावट पाई गई है। मुज़े सहित मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों को भारी जुर्माने और दूध मौका पर तलब किया गया है। लाहौर माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के तदारुक समेत दीगर मुतफारिक दरखास्तों पर समाअत आज हो रही है। अदालत ने स्कूलों में हफ्ते में 3 छुट्टियों के हवाले से नोटिफिकेशन तलब कर लिया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं नबील नकवी से। नबील बताइएगा। हाँ जी, लाहौर हाई कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी को और स्मोक के तदारुक समेत दीगर मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत अब से कुछ देर बाद होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने आज DC लाहौर और महकमा तालीम के स्कूलों में हफ्ते में 3 दिन की छुट्टियों के हवाले से नोटिफिकेशन तलब कर रखा है। जस्टिस शाहिद करीम शहरी, हारून फारूक और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जबकि डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज स्मोक के तदारुक के लिए अमली इक़दाम से जो है अदालत को आगाह करेंगे। जी नबील नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मरी, गलियात और गिरदुनवा में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध का इम्कान है। हिता पोठार में सुबह के औकात में चंद मुकामात पर धुंध का इम्कान है। जेहलम, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह में धुंध, ओकाड़ा, साहिवाल, बहावलपुर, बहावलनगर और मुल्तान में भी धुंध का इम्कान है। DI खान, नौशहरा, स्वाबी और रशकई में हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है, जबकि सखर, लाड़काना, मुंजोदाड़ो और गिरदुनवा में धुंध का इम्कान है। विफाकी दारुल हुकूमत में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार है। शहरी मौसमियाती बीमारियों और स्मोक से परेशान हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आज भी मौसम खुश्क रहेगा। मज़ीद जानते हैं सैरिश खान से। सैरिश, मौसम का अहवाल बताइएगा। जी देखें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इन दिनों मौसम खासा सर्द और खुश्क सर्दी की ये लहर है जो कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता कई हफ्तों से बरकरार है और अगले चंद रोज़ भी इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। खुश्क सर्दी की वजह से मौसमियाती बीमारियाँ काफ़ी फैल रही हैं। स्मोक से भी शहरी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन आम हो रही हैं शहरियों में और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज़ भी इस्लामाबाद में फ़िलहाल खुश्क सर्दी की लहर बरकरार ही रहेगी। आज इस्लामाबाद का दर्जा हरारत इस वक्त 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 70% है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज इस्लामाबाद का 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत आज 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। अगले चंद रोज़ भी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत कुछ ऐसा ही रहेगा। मुल्क के दीगर हिस्सों के मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में भी मौसम सर्द और खुश्क ही रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात में धुंध की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, जबकि मुल्क के बालाई बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। रुख करते हैं सखर का। सखर में महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अशिया खुरनोश की कीमतें रोज बजोर बढ़ रही हैं, बता रहे हैं हाजी रियाज खोकर इस रिपोर्ट में। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई हैं। आटा, तेल, घी, दालें, चावल, मिर्च, धनिये की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई हैं। गरीब और मुतवस्सित तबका अपने बच्चों को
2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता। आम लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। 200 गुना इजाफा हुआ है। आटा देखें, चीनी देखें, घी देखें, दालें देखें, अशिया खुर्दोनश की कीमतें कदर बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। लोग फाका कशी में मजबूर हैं। हालत इंतहाई तबाह हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। मौजूदा हुकूमत को महंगाई नजर नहीं आ रही है। सूबाई हुकूमती जिनका काम है महंगाई पे कंट्रोल करना, मादर पे आज़ाद मार्केट को छोड़ दिया है। जिसकी जो मर्जी आती है तो रेट लगा देता है, कोई पूछने वाला नहीं। गरीब आदमी का गुजर सफर बहुत मुश्किल हो गया। अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना उसके लिए मसला बन गया है। कारोबार करे या महंगाई को हम कवर करे तो इसमें बहुत तकलीफ आ रही है हमें। दालें हो गई, चीनी हो गई, आटा हो गया, इसका रेट एक रुक के ही नहीं दे रहा। जो चीज़ 120 रुपए किलो होती थी वो 270 रुपए 280 रुपए किलो चल रही है। ना हम बेचने जैसे ना खरीदार खरीदने जैसा रहा। महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हुकूमत और इदारे अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करें। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज कोखर, सच न्यूज़ सक्खर। मौसम सरमा में मछली खाने का अपना ही मजा। सर्दियों के आगाज के साथ ही सादिकाबाद मछली मंडी की रौनकें बहाल हो गई। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी शहजाद अब्बास। शहजाद अब्बास बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद फ़िश मार्केट में। यहाँ मुख्तलिफ इक़साम की फ़िश जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई जाती है, क्योंकि ये सादिकाबाद दरियाई पट्टी पर वाक़ है, तो दरिया की जो फ़िश है वो ताज़ा होती है और लोग उसे इंतहाई खुश दिली से खाते हैं। मेरे साथ इस वक्त सदर मार्केट के मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सादिकाबाद पाकिस्तान में मशहूर मछली मंडी है। सादिकाबाद की जो मछली है गुड्डू दरिया के साथ लगती है। गुड्डू दरिया से हमें मछली आती है, कश्मीर से आती है, कंदकोट से, गौसपोर से, लाड़काना से। यहाँ सिंध की पूरी मछली जो है सादिकाबाद में आती है और सादिकाबाद से यहाँ से जाती है लाहौर, गुजरांवाला। जी, इनका भी यही कहना है कि यहाँ की जो फ़िश है इंतहाई म्यारी होती है। इसको खाने वाले जो है ना वो सादिकाबाद को याद रखते हैं। जी अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।